My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing another CAT 2019 DLR set. Start करते हैं सेशन and if you have not already subscribed, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. So this is the set followed by 4 questions. Pause the video and try to solve it. Simple set है, easily solve हो जाना चाहिए. ठीक है? Let us read out the set first. A new game show on TV has 100 boxes numbered 1, 2, 3, 4 and so on till 100 in a row, each containing a mystery prize. The prizes are items of different types, A, B and C and so on in decreasing orders of value. So A should be of maximum value, then B should be of lesser value than A, C should be of lesser value than B and so on. The most expensive item is of type A, and that is a diamond ring, and there is exactly one of these. So type A ka there is only one item, which is a diamond ring. You are told that the number of items at least doubles as you move to the next type. So type B का number of items कितने होंगे? They should be at least, B should be, number of items of type B should be at least twice that of A. So greater than equal to twice that of A, यानी कि this should be greater than equal to 2. Okay, and number of items of type C, if there is a type C, so that should be at least twice that of number of items of item type B. For example, there would be at least twice as many items of type B as of type A, at least twice as many items of type C as of type B, and so on. There is no particular order in which the prizes are placed in the boxes. This is our basic caselet, and the first question is, what is the minimum possible number of different types of prizes? Minimum possible number of different types of prizes. Other than the condition that नंबर ऑफ आइटम्स एटलीस्ट डबल्स एज यू मूव टू द नेक्स्ट टाइप, और कोई कंडीशन तो है नहीं हमारा, तो एटलीस्ट डबल होना चाहिए, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है इस पर कोई भी लिमिट नहीं है. देयर इज नो अदर लिमिट. सो मिनिमम हमें करना है टोटल डिफरेंट टाइप्स के प्राइजेस को. सो ए टाइप का तो फिक्स है, वन आइटम हो सकता है. नंबर प्राइजेस ऑफ टाइप बी कितना हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए. मैक्सिमम कैन बी 99, क्योंकि 99 भी हो सकता है. टोटल आइटम्स जब 100 है हमारे, तो हम 99 पे इसको प्लेस कर सकते हैं. और जैसे हमने 99 प्लेस कर दिया, सो नंबर ऑफ आइटम्स will be equal to 2. That will be the minimum possible value of total number of items, क्योंकि कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, because एक टाइप का, A टाइप का, there is only one item. So minimum value will be equal to 2. Easiest question. Okay. Second question, what is the maximum possible number of different types of prizes? Maximum क्या हो सकता है? Maximum तो होगा जबकि हर टाइप के आइटम्स को मिनिमम पॉसिबल रखेंगे, और मिनिमम पॉसिबल की कंडीशन गिवन है कि मिनिमम देयर शुड बी आइटम्स ऑफ द नेक्स्ट टाइप should be double that of the previous type. Isn't it so? So if number of items of first type, type A, are equal to 1, so minimum items of type B should be equal to 2, because they have to be greater than equal to 2. So minimum should be equal to 2. Then for type C, minimum should be equal to 4. Then for type D, minimum should be equal to 8. For type E, minimum should be equal to 16. For type F, minimum should be equal to 32. And then for type G, मिनिमम शुड बी इक्वल टू 64. बट क्या ये पॉसिबल होगा, क्या टाइप जी आना पॉसिबल होगा? बिकॉज टोटल सम क्या हो जाएगा, टोटल सम इन दिस केस विल बी 127, बट टोटल आइटम्स ही हमारे पास 100 है. तो टाइप जी के आइटम्स हम 64 कर ही नहीं पाएंगे. सो दैट इज नॉट पॉसिबल इवन इफ वी आर प्लेसिंग ओनली मिनिमम आइटम्स इन एवरी कैटेगरी. तो टाइप जी कैन नॉट बी देयर, बिकॉज टाइप एफ आने के बाद में अगर हमें टाइप जी चाहिए, 7 टाइप चाहिए, तो वहां पे वी नीड एटलीस्ट 64 आइटम्स, बट हमारे पास उतने आइटम्स है ही नहीं. यानी कि लास्ट कैटेगरी, लास्ट टाइप कैन बी टाइप एफ. और फिर जो बचे हुए आइटम्स रह गए हमारे, यहाँ तक कितना सम हो गया हमारा, 63 हो गया. तो रिमेनिंग 37 शुड ऑल बी ऑफ टाइप एफ. अगर हमें बाकी सारी कैटेगरीज में मिनिमम रखना है तो शुड ऑल बी टाइप एफ, अदरवाइज बाकी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट इन इफेक्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स विल बी इक्वल टू 6. ओके. नंबर ऑफ आइटम्स क्या होंगे वो तो मैटर करेगा, क्योंकि हम या तो सारे के सारे एफ को दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंडीशन हमारा वायलेट नहीं होगा, या फिर कुछ आइटम्स ई को दे दिया, कुछ डी को दे दिया, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. तो वहां पे भी कोई हमें कंडीशन वायलेट जब तक नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिलहाल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 6. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? Option A, there are exactly 30 items of type B, there are exactly 75 items of type E, there are exactly 60 items of type B, or there are exactly 45 items of type C. Which of the following is not possible? तो कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा? अगर एक भी केस में एक भी कंडीशन पॉसिबल हो रहा है, दैट ऑप्शन इज पॉसिबल. तो पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं कि कैन देयर बी 30 आइटम्स ऑफ टाइप बी. तो टाइप ए आइटम्स आर इक्वल टू 1. इफ वी प्लेस टाइप बी आइटम्स इक्वल टू 30, तो कैन दिस बी पॉसिबल? रिमेनिंग कितना बच गया, 31 हो गया ऑलरेडी नंबर ऑफ आइटम्स. सो नंबर ऑफ आइटम्स इन टाइप सी will have to be greater equal to 60. और रिमेनिंग आइटम्स कितने बचे हमारे, 69. तो सारे के सारे 69 को टाइप सी में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि टाइप भी यहाँ पे बना ही नहीं पाएंगे. तो दिस विल बी द केस, एंड यस दिस इज पॉसिबल. तो सिंस दिस इज पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी द आंसर.
ऑप्शन बी, देयर आर एग्जैक्टली 75 आइटम्स ऑफ टाइप ई। तो ए बी सी डी ई, और टाइप ई टू एग्जिस्ट 5 टाइप्स तो होने पड़ेंगे, और ई के बाद में एफ पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे 75 आइटम्स हमने ई पे ही रख दिए हैं, तो इसके बाद एफ आ ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे 150 आइटम्स चाहिए, टोटली 100 है। तो 75 आइटम्स ऑफ टाइप ई, तो मिनिमम फॉर ए इज इक्वल टू 1, देन फॉर बी वी कैन हैव 2, एंड देन 4, एंड देन 8, बट रिमेनिंग कितना बच जाएगा? अभी ऑलरेडी सम कितना हो गया हमारा? 75 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 15 प्लस 75 90 हो गया। अब बचे हुए 10 और प्लेस करने हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत लेवरेज है। ई पे 75 है, तो डी पे हम 37 तक आइटम्स रख सकते हैं। डी पे क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 37, 38 नहीं हो सकता। तो बचे हुए सारे 10 को डी पे प्लेस कर दो, या और भी तरीके हैं, कुछ सी पे प्लेस कर दिया, कुछ डी में प्लेस कर दिया, तो मल्टीपल ऑप्शंस आर पॉसिबल, बट यस देयर कैन बी 75 आइटम्स ऑफ टाइप ई, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड हेंस दिस कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन सी, 60 आइटम्स ऑफ टाइप डी। अब लॉजिक समझ पा रहे होगे कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। तो फॉर ऑप्शन डी, टाइप डी, 60 आइटम्स रख दिए, 40 और रह गए हमारे, ठीक है। तो 1 एंड 2, एंड देन अगर हमने 4 रखा, तो यहाँ पे हमारा कितना रिमेनिंग बच जाता है? 67 हो गया, 33 इज रिमेनिंग, 33 आइटम्स आर रिमेनिंग। सो क्या इनको हम प्लेस कर पाएंगे, इन 33 आइटम्स को? क्या टाइप डी के 60 आइटम्स होना पॉसिबल है? 33 आइटम्स को प्लेस करना अभी भी रह जाता है हमारे पास, और टाइप ई तो रख नहीं सकते। अब 33 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? बिकॉज टाइप डी के 60 आइटम्स है, तो टाइप सी हैव टू बी लेस देन इक्वल टू 30, और फिर अगर टाइप सी पे 30 प्लेस कर दिया, मान लो 26 यहाँ पे रख दिया, तो 7 और रह गए। टाइप बी में क्या हो सकता है? 30 आइटम्स हो गए टाइप सी में, तो टाइप बी कैन बी लेस देन इक्वल टू 15, तो यस रिमेनिंग 7 कैन बी प्लेस्ड इन टाइप बी, तो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी। और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल होने का पॉसिबिलिटी बनता है नहीं बनता है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। सो 45 आइटम्स ऑफ टाइप सी। देखो यहाँ पे पंगा क्या फंस रहा है कि इफ वी हैव 45 आइटम्स ऑफ टाइप सी, वी कैन नॉट हैव अ टाइप डी, बिकॉज फॉर टाइप डी वी नीड एटलीस्ट 90 आइटम्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आइटम्स, बट उतने आइटम्स बचेंगे ही नहीं। भले तुम ए पे 1 आइटम रखो और बी पे 2 आइटम रखो, स्टिल द रिमेनिंग आइटम्स विल बी ओनली 52। वी डोंट हैव 90 आइटम्स, दैट इज वाई दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर है बात? ठीक है। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। पहले दो क्वेश्चंस तो बेसिकली एसेट के अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, बट दिस वाज अ डिसेंट क्वेश्चन, गुड लेवल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर आस्क्ड for the type of items in box 45. You ask for the type of item in the box 45. Instead of being given a direct answer, you are told that there are 31 items of the same type as box 45 in boxes 1 to 44, and 43 items of the same type as box 45 in boxes 46 to 100. So what is the maximum possible number of different types of items? Maximum possible number of different types of items. तो जो हमारा बॉक्स 45 में आइटम है, सेम आइटम इज ऑल्सो देयर फ्रॉम बॉक्सेस 1 to 44, 31 times, so 31 items are there, and then from box 46 to 100, that item is 43 times. तो टोटल टाइम्स, टोटल कितना टाइम्स आ रहा है बॉक्स 45 वाला आइटम? यहाँ पे 1 टाइम है, तो 31 प्लस 1 प्लस 43, तो दैट इज इक्वल टू 75 टाइम्स। ओके, कोइंसिडेंटली सेम शायद ऑप्शन 3 में भी क्वेश्चन था। देयर आर एग्जैक्टली 75 आइटम्स ऑफ टाइप ई। सो इस क्वेश्चन के ऑप्शन और सेम यहाँ पे वैल्यू भी सेम ही आ रहा है, तो यहाँ से भी देख के हमें रियलाइज हो रहा है कि 5 टाइप्स ऑफ आइटम्स आर पॉसिबल। डेफिनेटली 5 तो पॉसिबल है, ठीक है। तो उतना भी अगर पीछे वाले को देखा होगा 3 और 4, तो मैक्सिमम क्योंकि पूछा है, तो डेफिनेटली 5 इज पॉसिबल। क्या 6 पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पे? 75 के साथ में क्या 6 पॉसिबल हो पाएगा? तो ऑलरेडी हमने सेकंड क्वेश्चन में जो देखा है लॉजिक, वहां से समझ पा रहे हो कि हमें अगर 6 टाइप्स के आइटम्स बनाने हैं, ठीक, और 6 पे 75 रख दें, क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि मैक्सिमम 6 पे कितने आ पा रहे थे? दैट वाज 6 9, तो 6 टाइप्स के आइटम्स पॉसिबल ही नहीं है। 5 ही मैक्सिमम पॉसिबल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 5। अदरवाइज कैसे करोगे कि कोशिश करो 6 बनाने का? ए बी सी डी ई एफ, तो ये 6 तो कभी भी पॉसिबल नहीं था। और फिर हमने रख दिया 75 आइटम्स इन टाइप एफ। अब टाइप ए का 1 है, टाइप बी का मिनिमम 2 होंगे, टाइप सी मिनिमम 4, टाइप डी मिनिमम 8, टाइप ई मिनिमम 16। बट ये सम हमारा कितना हो जा रहा है? दिस सम इज ऑलरेडी 24 प्लस 7, 31। तो 31 प्लस 75 इज 106, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है ही नहीं। सो टाइप्स 6 टाइप्स के आइटम्स तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 5 टाइप्स पे हम प्लेस कर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो एक बोनस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए।
try this कि what can be minimum possible number of prices of least valuable type. Minimum possible number of prices for least valuable type. अब ये क्वेश्चन कैट में तो नहीं आया था, बट तुम्हें करने के लिए ट्राई करो इस क्वेश्चन को कि व्हाट कैन बी मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ लीस्ट वैल्यूएबल टाइप. क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है? ठीक है, तो इसके लिए पहले पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि जस्ट इन केस मान लो हमने 7 टाइप्स के आइटम्स लिए, 100 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. ओके, सो इफ वी हैव 7 टाइप्स ऑफ आइटम्स, तो व्हाट कैन बी मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पर समझ रहे हैं पहले पैटर्न कि ऐसे सेट में क्या पैटर्न होगा हमारा. क्योंकि कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है हमारा, यू आर टोल्ड दैट नंबर ऑफ आइटम्स एट लीस्ट डबल्स एज यू मूव टू द नेक्स्ट टाइप. सो टाइप ए का देयर इज एग्जैक्टली वन आइटम, तो टाइप बी का आइटम्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 2. तो मिनिमम 2 आइटम्स होंगे टाइप बी के. फिर टाइप सी का आइटम्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 4, so minimum 4. Similarly, 8 minimum for type D, 16 minimum for type E, 32 minimum for type F, and 64 minimum for type G. तो टोटल आइटम्स कितने आ गए हमारे? 127, आउट विच टाइप G आइटम्स आर 64 बिकॉज लीस्ट वैल्यूएबल टाइप क्या है हमारा? टाइप G इज द लीस्ट वैल्यूएबल टाइप एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव टाइप. तो प्रेजेंट क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ लीस्ट वैल्यूएबल टाइप. ठीक है, तो अभी हमने सारा के सारे जो कंडीशन किया है ये कैसे फॉलो किया है. ये हमने मिनिमम वाला ही केस लिया है, सारे केसेस में मिनिमम वैल्यू ही लिया है. और टाइप जी के लिए मिनिमम वैल्यू 64 ही होगा, क्योंकि अदरवाइज 64 के बजाय 63 नहीं रख सकते. 65 चलेगा, 66 चलेगा, कोई भी नंबर चलेगा, बट 64 से छोटा नंबर नहीं चलेगा. तो अभी तक सारे के सारे केसेस जब हमने स्मॉलेस्ट लिए हैं, अगर 7 टाइप्स के आइटम्स है तो 127 आइटम्स होने चाहिए. और वहां पे फिर हमारा टाइप जी का आइटम्स कितना है? 64 आ रहा है, विच इज रफली 50%. रफली 50%. तो अगर हमने कंस्टेंट फॉलो किया और हर एक केस में मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइटम प्लेस किए, तभी हम लास्ट केस में मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस कर पाएंगे. और वहां पे भी दैट नंबर विल बी मोर देन 50%. क्या ये पैटर्न पकड़ पा रहे हैं कि दैट नंबर विल बी मोर देन 50%, यानी कि आइटम्स ऑफ लीस्ट वैल्यूएबल टाइप मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी दैट शुड बी ग्रेटर देन 50%. चाहे तुम कोई भी केस लो, हर एक केस में ये सेम चीज फॉलो होगा एज लॉन्ग एज कंडीशन हमें गिवन है कि नंबर ऑफ आइटम्स एटलीस्ट डबल्स. तो अगर तुम डबल भी रख रहे हो हर एक केस में और डबल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रख रहे हो, तो इवन इन दैट केस द लास्ट कैटेगरी द लीस्ट वैल्यूएबल टाइप मस्ट कंटेन एटलीस्ट 50% प्लस आइटम्स. तो यानी कि टोटल 100 आइटम्स अगर हमारे पास है, तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 50. ये बात तो पक्की है. यहां से आंसर हमारा आ नहीं जाता है, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यानी कि आंसर हमारा 51, 52, 53 कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट आंसर शुड बी ग्रेटर देन 50 फॉर एनी वैल्यू, और ग्रेटर देन 50% फॉर एनी वैल्यू व्हाटसोएवर. कुछ भी गिवन हो, 1000 हो, 10,000 हो, कि फॉर लास्ट कैटेगरी आंसर शुड बी ग्रेटर देन हाफ दैट. ओके, अब कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट. और कब हमें लीस्ट वैल्यूएबल टाइप में मिनिमम नंबर मिलेगा? जबकि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइप्स हो हमारे पास. यानी कि जितने कम टाइप रखोगे उतना ज्यादा वैल्यू आएगा फॉर द लार्जेस्ट. फॉर एग्जांपल अगर हमने रखे सिर्फ 2 ही कैटेगरीज ए एंड बी, तो ए कैटेगरी में देयर इज एक्जैक्टली वन आइटम, सो बी में सारे के सारे 99 आ जाएंगे. तो ये तो मिनिमम ऑब्वियसली नहीं होगा. अगर 3 कैटेगरीज रखोगे ए बी एंड सी, तो उस केस में क्या है? ए में 1 आ गए, अब बचे कितने हैं? क्योंकि अभी हमें इस बार अरेंज करने पड़ेंगे, पिछली बार तो फिक्स था ए पे, तो सेकंड में बाकी सारे आइटम्स आ गए. इस बार हमें फिक्स करने पड़ेंगे, तो बी और सी मिला के कितने आइटम्स बचे? 99 बचे. और अगर बी में तुमने एक्स आइटम्स रखे, क्योंकि सी में मिनिमम रखने हैं, लास्ट कैटेगरी में मिनिमम रखने हैं, तो फिर सी में 2x रखने पड़ेंगे. तो 3x इज इक्वल 99. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? इफेक्टिवली x और 2x, 3x की वैल्यू 99 आ रहा है, यहाँ से क्लियरली 33 एंड 66, यानी कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइटम्स फॉर कैटेगरी सी विल बी 66. तो हमें क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइसेस ऑफ लीस्ट वैल्यूएबल टाइप, तो हम नंबर ऑफ कैटेगरीज को, नंबर ऑफ टाइप्स को इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल रखेंगे, जो कि 6 है. तो 6 टाइप्स रखते हैं, ए बी सी डी ई एफ. ओके, ए बी सी डी ई एफ. सो ए का एक आइटम है, लेट अस से बी के आइटम हमने रखे हैं एक्स, सी के लिए रखे 2x, तो डी के लिए होगा 4x, देन 8x, देन 16x. तो टोटल आंसर कितना हो गया मेरे पास? x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8x 16x 16 24 28 31. तो 31x शुड बी इक्वल टू 99. यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा कि 31x अगर इक्वल टू 99 हो रहा है, तो 99 पे इंटीजर सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, बट x शुड बी इक्वल टू 3. और उसके बाद में जो आइटम्स बच जाएंगे हमारे, उनको हम बाद में एडजस्ट करेंगे. तो आइटम्स हमने x इक्वल टू 3 रखा, तो b पे आइटम्स आ जाएंगे 3, देन 6, 12, 24 एंड 48. ऑलरेडी हमने 31x यानी कि 93 आइटम्स को तो एडजस्ट कर दिया यहाँ पे. ओके, 1 पहले से था, तो 94, 93 प्लस 1 यानी कि 94 आइटम्स आर एडजस्टेड ऑलरेडी. 6 आर रिमेनिंग. हाउ कैन वी एडजस्ट these 6 items such that items in category F are minimum?
ओके, सो अगर हमने कैटेगरी बी में, टाइप बी में एक आइटम रखने की कोशिश की, तो पंगा क्या हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे एक रखेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ 2 रखने पड़ेंगे, फिर यहाँ 4 रखने पड़ेंगे, यहाँ 8 रखने पड़ेंगे, यहाँ 16 रखने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास 60 आइटम्स बचे हैं। तो अब फिर हम कैटेगरी बी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कर सकते थे तो फिर हमें एक्स का वैल्यू ही 4 मिल गया होता। ऑब्वियसली ये वैल्यू 3 आया, दैट देयर इज अ रीजन फॉर दैट। ठीक है, तो अब बचे हुए से इसको कहाँ से अरेंज करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ई पे 1 रखेंगे, 1 आइटम रखेंगे, तो एफ कैटेगरी में आ जाएंगे 5 आइटम्स। क्या कोई और केस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम ई कैटेगरी में 2 आइटम्स रखें, तो एफ पे आ जाएंगे 4 आइटम्स। तो दिस कुड बी अ पॉसिबल केस। या फिर क्या हम डी से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या 4 के बजाय 3 भी होना पॉसिबल होगा? अगर हम डी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, तो वी कैन पुट 1 आइटम इन कैटेगरी डी, टाइप डी, देन मिनिमम 2 आइटम्स शुड बी इन कैटेगरी ई, टाइप ई, और फिर उसके बाद देयर शुड बी मिनिमम 4 आइटम्स इन टाइप एफ। बट 7 आइटम्स चाहिए होंगे, जबकि 6 आइटम्स ही बचे हैं, तो फिर हम डी कैटेगरी से स्टार्ट तो नहीं कर सकते। तो फॉर श्योर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टाइप एफ, टाइप ई, 2 आइटम्स इन टाइप ई एंड 4 आइटम्स इन टाइप एफ। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ लीस्ट अवेलेबल टाइप will be equal to 48 plus 4, which is equal to 52. So the answer for this question will be 52 should be the minimum possible number of prizes of least valuable type. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक, सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किया, सो दैट तुम्हें और ऐसे सेट का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और एक लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, तो यू हैव टू आंसर इन कमेंट्स अबाउट दिस क्वेश्चन कि इफ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइजेस, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ टाइप बी। तो आंसर दिस क्वेश्चन कमेंट्स, और साथ में कमेंट्स में ये भी बताना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना। ओके, एंड ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।